Hello guys. So in the last video, what we had discussed the numerical properties of the OLS estimator. So what do we mean by numerical properties? So without commenting on the nature of data of X and Y, so how X and Y are obtained, do they follow any probability distribution or not, we just discuss what are their numerical properties. For example, we discussed that the mean of your yi hat is same as your mean of your yi bar. So these were some of the numerical properties which we discussed. Now, the main theme of today's lecture is that we will basically discuss the assumptions underlying linear regression. So what are the assumptions we make about the X and Y variables? Okay, but before starting that, there's a small topic which we need to finish, which is writing regression equations in deviation form. Now this is an important topic in the sense that sometimes writing the regression equations in deviation form makes our analysis much simpler. What do we actually mean by deviation form? For example, so you have X values, you have Y values. Now deviation means deviation from mean. Deviation means deviation from mean. Is this clear? So suppose my first value is x1, my second x value is x2, my third x value is x3, my first y value is y1, my second y value is y2, my third y value is y3. Now if I subtract the mean from each of these values, their respective mean from each of these values, so I obtain new series which are denoted by small x and small y. So basically small x में क्या आएगा, x1 minus x bar, x2 minus x bar, x3 minus x bar and so on. Small y में y1 minus y bar, y2 minus y bar, y3 minus y bar and so on. Is this clear? So what does so small xi, I means the observation number, small xi is capital Xi minus x bar. I hope this is clear. X bar is the mean of the x value and small yi is equals to capital Yi minus y bar. Is this clear? Now similarly, so after running the regression, we also have the values of yi hat. Okay, so yi hat also can be written in deviation form. So yi hat का deviation form क्या होगा? Yi hat small में आ जाएगा, so it will be equal to yi hat minus yi hat का mean. Just like x bar y bar ऐसे yi hat bar, but हमें पता है कि yi hat का mean is same as yi का mean, so this is equal to yi hat minus y bar. Is this clear? So these are the notations. Now we will see how we can rewrite our regression equation using these notations. Their use will become much more clearer and you will appreciate their use in the subsequent chapters. So we know that yi is equals to beta 1 hat plus beta 2 hat xi plus ui hat. Is this clear? Okay. Also, so this is my equation number 1. Also, yi hat, so my yi hat क्या होता है? Yi hat is beta 1 hat plus beta 2 hat xi. ठीक है, बेसिकली ये जो था यहाँ पर ये yi hat था. Suppose if I sum this equation
if I sum this equation and divide by n, if I sum this equation and divide by n, so you will get summation yi hat by n is equals to beta 1 hat plus beta 2 hat summation xi by n plus beta 2 hat summation xi by n. ठीक है, अब समेशन yi hat by n क्या होगा, हमने डिस्कस किया कि ये होता है yi hat bar which is same as yi bar, it is equal to beta 1 hat plus beta 2 hat x bar. So this becomes my equation 2. This becomes my equation 2. So if I do equation 1 minus 2, if I do equation 1 minus 2, so I get yi minus y bar, beta 1 hat get cancelled out. I am left with beta 2 hat xi minus x bar plus ui hat. Now what is this? This is your small yi, this is your small xi, and then you are left with ui hat. I hope this derivation is clear. This is an important derivation. Now we know that yi is equal to yi hat plus ui hat. Yes, I can write ui hat is equals to yi minus yi hat. So if I add and subtract y bar from this, so I'll get yi minus y bar minus yi hat minus y bar, क्योंकि यहाँ पर y bar आपका जो है subtract and add हो रहा है. So what is this? yi minus y bar? Yi minus y bar is your small yi, and this is, we have proved earlier that this is small yi hat. This is small yi hat. ठीक है, तो इसमें से हमने क्या रिजल्ट डिराइव किया, that yi is equals to yi hat plus ui hat, yi is equals to yi hat plus ui hat. और अभी हमने ऊपर क्या रिजल्ट डिराइव किया, that yi is equals to beta 2 hat xi plus ui. yi is equals to beta 2 hat xi plus ui. तो अगर आप इन दो comparing these two equations, what do we get? We can see that yi hat is equals to beta 2 hat xi. yi hat is equals to beta 2 hat xi. I hope this derivation is clear. This is a very important derivation. इसका use subsequent chapters में आएगा. इसका use आपका subsequent chapters में आएगा. Is this clear? ठीक है. Now हमने जो है जनरली हम बीटा 2 हैट की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, तो इट इज समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस y बार अपॉन समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. नाउ अभी तक आपको ये फॉर्मूले जो हैं ये याद हो जाने चाहिए, एंड अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो नाउ इट्स द राइट टाइम टू गो बैक एंड रिवाइज दिस फॉर्मूले. ठीक है, so now what is this? This is deviation from mean of x, deviation from mean of y. So I can write this as summation small xy upon summation small x square. ठीक है, इसको हम और भी मॉडिफाई कर सकते हैं. So this is summation x, small y is what? Y minus y bar, summation x square. So this is summation xy minus y bar summation x upon summation x square. Now I can write this as just, this y is capital Y here, this y is capital Y,
So this becomes, it is only equal to summation xy by summation small x square y, because this term is 0. Now why is this term 0? See, समेशन x क्या होता है, समेशन x माइनस एक्स बार, और मैंने आपको बहुत बार ये प्रूव कराया है कि जब आप किसी ऑब्जर्वेशन सीरीज का डिविएशन फ्रॉम मीन लेते हो तो वो हमेशा 0 होता है, तो वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, क्यों 0 होता है अगर नहीं याद, तो समेशन x माइनस एक्स बार इट इज इक्वल टू समेशन x माइनस n टाइम्स एक्स बार। ठीक है, एंड व्हाट इज समेशन x? समेशन x इज आल्सो n टाइम्स x बार माइनस n टाइम्स x बार, सो इट इज इक्वल टू 0। Is this derivation clear? Similarly, you can write that this is your beta 2 hat. अब अगर हम जो है small if we expand so small x, तो ये बना summation x minus x bar small y upon summation x minus x bar small y upon summation x square upon summation x square। ठीक है, तो इससे ये बन गया summation x y minus x bar summation y by summation x square। तो जैसे summation small x 0 था, ऐसे summation small y भी 0 है, because it is sum of deviations from mean for the y series, so your beta 2 hat is also equal to this। So basically what is the conclusion, that your beta 2 hat, it is equal to summation xy upon summation x square in deviation form, it is equal to summation xy summation x square, it is also equal to summation capital xy by summation x square। ठीक है, तो ये आपको न्यूमेरिकल आप करके भी देख सकते हैं बीटा 2 हैट कैलकुलेट करने के लिए। तो एक बार तो आपने क्या किया कि x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार निकाला, एक बार आपने सिर्फ x माइनस एक्स बार निकाला और उसको सिर्फ y से मल्टीप्लाई किया, ना कि y माइनस वाई बार, तो यू गेट द सेम आंसर। आई होप दीज डेरिवेशंस आर क्लियर। ठीक है, now let us move to the main topic of this video। So it is assumptions of the classical linear regression model, this is abbreviated as CLRM। जो भी अभी तक हमने रिग्रेशन मॉडल पढ़ा है इस तरीके का, that your population regression function yi is equal to beta 1 plus beta 2 xi, yi is equal to beta 1 plus beta 2 xi plus ui। ठीक है, so this is basically a classical linear regression model। Now so we will discuss why is it called as a linear regression model। classical इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि this was the first model that was discussed in econometrics, और उसके बाद जो सारे मॉडल्स हैं इसी के जो हैं different modifications हैं और इसके different iterations। now why do we need to make assumptions? ठीक है, अभी तक आपने क्या किया, आपके पास x का डेटा है, अपने y का डेटा है, बिना कुछ ये देखे कि x कैसे जनरेट हुआ, y कैसे जनरेट हुआ, आपने सिंपली OLS रन कर दिया, आप तो आपकी कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी। ठीक है, बट सो द थिंग इज कि इफ आवर ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टिमेट beta 1 and beta 2 only, the method of OLS would suffice। कि अगर हमें सिर्फ डेटा देख के बीटा 1 और बीटा 2 को एस्टिमेट करना है, जो कि हम OLS में करते हैं,
हम क्या निकालते हैं, हम बीटा वन हैट और बीटा टू हैट की वैल्यू निकालते हैं, जो कि एस्टिमेटर्स हैं बीटा वन और बीटा टू के। तो अगर हमारा सिर्फ यही काम होता कि डेटा दे रखा है, आपने बीटा वन हैट और बीटा टू की वैल्यू निकाल दी और आपने बोल दिया कि हाँ y hat is 11.6 plus minus 0.8 xi, so then this method OLS is sufficient. But in regression analysis, our objective is not only to obtain beta 1 hat and beta 2 hat, but also to draw inferences about true beta 1 and beta 2. हमारा काम सिर्फ बीटा वन हैट एंड बीटा टू हैट का न्यूमेरिकल एस्टिमेट निकालना, बीटा वन हैट 0.8 है, बीटा टू हैट आपका 11 है या जो भी है, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। हम जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स है बीटा वन और बीटा टू, उनके बारे में हम इन्फ्रेंस भी ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल we would like to know how close beta 1 hat and beta 2 hat are to beta 1 and beta 2। हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमने बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट ऑब्टेन किया सैंपल डेटा से, वो पॉपुलेशन के जो बीटा 1 एंड बीटा 2 है उनसे कितना क्लोज है। तो सिर्फ OLS रन करोगे तो आपको उसके बारे में इन्फ्रेंस नहीं मिलेगा जब तक आप कुछ ना कुछ अजम्पशंस नहीं लेते हो अबाउट योर एक्स एंड वाई, ठीक है। सो टू मेक inferences, we must not only specify the functional form of the model, but also make certain assumptions about the manner in which yi are generated, ठीक है। तो अगर हमें इन्फ्रेंसेस भी, सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि हमारा बीटा वन हैट और बीटा टू हैट क्या है, और हमें इन्फ्रेंसेस भी ड्रॉ करने हैं अपने मॉडल के लिए, तो हमें कुछ अजम्पशंस बनाने पड़ेंगे कि हमारा जो y वैल्यू है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, वो कैसे जनरेट हुआ। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, इट इज इक्वल टू पॉपुलेशन में बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस यू आई, ठीक है। तो वाई आई बेसिकली डिपेंड्स on both xi and ui, yi depends on both xi and ui, ठीक है। so unless we are specific about how xi and ui are generated, we cannot make any statistical inference about yi, and about
बीटा 1 एंड बीटा 2। तो जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके x और u का क्या नेचर है, जो आपके x एंड u का क्या नेचर है, तब तक आप y और ना ही जो पॉपुलेशन के बीटा 1 और बीटा 2 हैं, जो पॉपुलेशन के बीटा 1 है बीटा 2 है, उनके बारे में आप कोई इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ नहीं कर सकते, उनके बारे में आप कोई इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ नहीं कर सकते। Is it clear? Now just to just want you guys to remember that ये जो हम रिग्रेशन मॉडल के जो assumptions कर रहे हैं, ये क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के जो हम assumptions कर रहे हैं CLRM के, ये assumptions किसके हैं? These assumptions are about the population and not for the samples. These assumptions are about the population and not for the sample. Sample के बारे में आप assumption नहीं ले रहे हो, सैंपल से आपने OLS निकाला, OLS की न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज आई, बट जो assumptions लेते हो वो पूरी पॉपुलेशन पे लेते हो। ठीक है, इसलिए मैं हर जगह क्या लिख रहा हूँ, yi इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi प्लस ui। आई एम नॉट यूजिंग हैट्स बिकॉज जो assumptions हैं वो पॉपुलेशन के हैं। जो न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज आपने जो है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी वो सैंपल के लिए थी, जो न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज थी वो सैंपल के लिए थी, जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के assumptions हैं वो पॉपुलेशन के लिए है। ठीक है, नाउ देयर आर 5, we will discuss 5 key assumptions. These are very important, these are extremely important, 5 key assumptions of classical linear regression model. ठीक है, now first assumption is, so assumption 1, so as the name suggests कि हम कौन से मॉडल कौन से रिग्रेशन मॉडल डिस्कस करते हैं, लीनियर रिग्रेशन मॉडल। व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय लीनियर रिग्रेशन मॉडल? so we assume that the regression model is linear in the parameters. We assume that the regression model is linear in the parameters, though it may or may not be linear in variables. तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम बोलते हैं कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, तो लीनियरिटी किस में देखनी है? पैरामीटर्स में। पैरामीटर्स कौन से हैं आपके? बीटा 1 एंड बीटा 2, उनमें मॉडल लीनियर होना चाहिए। वेरिएबल्स में नहीं भी, वेरिएबल्स कौन से? एक्स एंड वाई, उसमें अगर आपका मॉडल लीनियर नहीं है तब भी वो लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहलाएगा। ठीक है, तो लीनियरिटी के लिए किसमें लीनियर होना चाहिए? वो पैरामीटर्स में लीनियर होना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली लीनियर इन पैरामीटर्स means no parameter appears as an exponent, no parameter appears as an exponent nor multiplied or divided by another parameter, So let us discuss some examples to basically highlight these points. So if I have the regression model, इनिशियली जो पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल कैसे स्टार्ट होता है, दैट योर E of y conditional xi, that is the conditional mean of y given xi, is a function of xi. It is a function of xi. If it is, the functional form is this. ठीक है, so this is a linear regression model, क्योंकि बीटा 1 और बीटा 2 के जो है वो लीनियर है। ये बीटा
इनकी कोई पावर नहीं है, ठीक है। अगर ये इस तरीके का है β1 प्लस β2 xi स्क्वायर, तब भी ये लीनियर है, क्योंकि लीनियरिटी पैरामीटर्स में से आती है, लीनियरिटी पैरामीटर्स में से आती है, ठीक है। जो आपके β1 एंड β2 है, बाय इनकी लीनियरिटी जरूरी है, क्योंकि तभी आप अपने कोफिशिएंट्स को इंटरप्रेट कर पाओगे, ठीक है। मैं अगर कहूँ कि β2 स्क्वायर 0.9 है, उसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इफ आई हैव β1 प्लस β2 ln xi, मतलब मैंने x का log ले लिया, तब भी ये लीनियर है, बिकॉज अभी भी ये β1 और β2 है। बट सपोज आई हैव β1 प्लस β2 स्क्वायर xi, ना यहाँ पर β2 स्क्वायर हो गया, तो ये आपका नॉन लीनियर हो गया, ये आपका नॉन लीनियर हो गया, इज दिस क्लियर? ये आपका नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। नाउ sometimes the model appears as non-linear, but it can be made linear. कभी कभी हमें मॉडल जो है वो लगता है कि वो नॉन लीनियर है, बट वो इजीली जो है कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन करके हम उसको लीनियर बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि सपोज योर मॉडल इज दैट yi इज इक्वल्स टू e की पावर β1 प्लस β2 xi प्लस ui, ठीक है। तो क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? इज दिस अ लीनियर मॉडल और नॉन? तो देखने में लगेगा कि नॉन लीनियर, बट यू कैन सिंपली टेक log on both sides, so this becomes β1 plus β2 xi plus ui, ठीक है। so this becomes a linear model. y के log लेने से linearity फर्क नहीं होगी, आपका β1 और β2 होना चाहिए, β1 और β2 होना चाहिए। so this is how we have made it to a linear regression model, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि क्या ये मॉडल जो है लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो अगर ट्रांसफॉर्म करके ये लीनियर हो सकता है, तो आपने इसको लीनियर ही लिखना है, दैट दिस इज अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, दिस इज अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। इज दिस क्लियर? बट सपोज यू हैव योर yi is equals to β1 प्लस β2 क्यूब xi प्लस ui, तो इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते β2 से, तो ये आपका नॉन लीनियर मॉडल है, दिस इज योर नॉन लीनियर मॉडल, ठीक है। तो द फर्स्ट एजम्पशन ऑफ द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज कि ये लीनियरिटी किस में होनी चाहिए, पैरामीटर्स में, वेरिएबल्स में नहीं भी होगी तो वो चल जाएगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे वेरिएबल्स में नहीं भी लीनियरिटी होती, जैसे वेट है, वेट अगर सपोज एज का फंक्शन ना होके ये ऑब्जर्व किया गया कि वो एज स्क्वायर का फंक्शन है, तो आप इसको इजीली जो है लीनियर रिग्रेशन मॉडल में लिख सकते हो, दैट w इज इक्वल टू β1 प्लस β2 एज स्क्वायर प्लस ui, तो इसमें आपका ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल ही है, क्योंकि आप β1 और β2 के बारे में बात कर रहे हो, चाहे ये आपका जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो लीनियर नहीं है, चाहे आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है वो लीनियर नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। next assumption is assumption 2 is that the x values are fixed in repeated sampling. The x values are fixed in repeated sampling. So more technically, x is assumed to be non-stochastic. स्टोकेस्टिक का क्या मीनिंग होता है? रैंडम होगा, ठीक है।
लेकिन हम x, ये हमने शुरू में इंट्रोडक्टरी क्लास में डिस्कस किया है कि हम x वैल्यूज को नॉन स्टोकेस्टिक यानी कि फिक्स्ड मानते हैं। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस के पर्पस के लिए कि जब हमने डिस्कस किया था कि आपका जो है सपोज योर x इज इनकम एंड y इज कंजम्पशन, तो इनकम की पहले हमने कैटेगरी फिक्स कर दी 80, 100, 120, 140, 160 एंड सपोज 80 इनकम वालों के कंजम्पशन हो सकते हैं 55, 60, 100 वालों के कंजम्पशन हो सकते हैं 80, 85, 90, 120 के हो सकते हैं आपके 100, 110 एंड सो ऑन। तो इस एक सैंपल क्या बन गया, एक सैंपल बन गया 80, 55, 100, 80, 120, 110, दिस इज वन सैंपल। अब जब आप दूसरा सैंपल चूज करोगे तो उसमें भी x की वैल्यू यही देखोगे ना, 80, 100, 120। ठीक है, तो ऑल्दो x जो है इनकम वैल्यूज कैन ऑल्सो बी रैंडम, लेकिन आपने एक बार उनको रिग्रेशन एनालिसिस के पर्पस के लिए आपने x वैल्यूज को फिक्स कर दिया, यू हैव मेड देम नॉन रैंडम। I hope this is clear. ठीक है, so we can say that x is non-stochastic, x is non-stochastic, or x is not a random variable, x is not a random variable in regression analysis. X is not a random variable in regression analysis. Is this clear? Now let us discuss the third assumption. Assumption 3, which is assumption 3 is zero mean value of disturbance, zero mean value of disturbance ui, zero mean value of disturbance ui. Now to revise कि what is ui. अच्छा, एक डिस्टिंक्शन आपने याद रखनी है जो काफ़ी बुक्स फॉलो करती हैं। ठीक है, कभी कभी हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, कभी कभी हम वो डिस्टिंक्शन जो है उसको फॉलो करते हैं कि हम एरर या डिस्टर्बेंस टर्म जो है, एरर या डिस्टर्बेंस टर्म हम यूआई के लिए बोलते हैं। तो बेसिकली जो पॉपुलेशन में जो एरर्स होते हैं, और रेसिडुअल टर्म जो है वो हम यूआई हैट के लिए बोलते हैं, यानी कि जो सैंपल में होता है। ठीक है, कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं हम एरर्स या रेसिडुअल्स, लेकिन कुछ बुक से फॉलो करती हैं कि एरर पॉपुलेशन के लिए बोलते हैं, रेसिडुअल की जो आपने प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्शन करने के बाद जो बच गया इज रेसिडुअल, तो वो सैंपल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, जीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस यूआई, जीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस यूआई। So what is basically the meaning of this statement? So let me take an example. So suppose मुझे ये देखना है कि किसी मतलब एक कंपनी में एम्प्लॉयज की पॉपुलेशन है और हम देख रहे हैं कि उनकी वेजेस जो है उनकी एजुकेशन से कैसे उस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो मतलब हमारा जो x वेरिएबल है वो एजुकेशन है, एजुकेशन कुड बी योर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एजुकेशन, so this is your x variable and y variable is wages, तो हम ये देखना चाहते हैं कि एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट होता है वेजेस पे। ठीक है, तो अब ui क्या होगा, ui बेसिकली एरर या आपके अनऑब्जर्व वेरिएबल्स होते हैं। अनऑब्जर्व वेरिएबल्स तो वो वेरिएबल्स जिनको आप कैप्चर नहीं कर पाते, हमने पढ़ा है ना कि व्हाट आर द रीजन फॉर इंक्लूडिंग द एरर टर्म इन द मॉडल। तो जो वेरिएबल्स आप उनको कैप्चर नहीं कर पाते वो यूआई में आते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस केस में क्या हो सकता है कि वेजेस सिर्फ एजुकेशन का फंक्शन ना हो, वेजेस जो है
एजुकेशन एंड सिर्फ आपकी एजुकेशन नहीं देखी जाती है ना, आपकी एबिलिटी भी देखी जाती है। आपकी एबिलिटी भी देखी जाती है कि वेजेस आपको, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, अगर आप सारे बीबी हो तो सबको सेम वेज थोड़ी मिलती है। आपकी वो इंटरव्यू में जो है सारे बीबी हो या सारे इकोनॉमिक ऑनर्स, आपको सेम वेज नहीं मिलेगी ना। आपकी एबिलिटी भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, बट एबिलिटी इज डिफिकल्ट टू मेजर। एबिलिटी इज डिफिकल्ट टू मेजर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एबिलिटी को नहीं लिखते, हम सिर्फ एजुकेशन को लिख लेते हैं, और एबिलिटी फिर किस में सब्स्यूम हो गया, आपके एरर टर्म में सब्स्यूम हो गया ना। अब ये अजम्पशन क्या कह रहा है, दैट द mean value of the error term is 0. So mean value of the error term is 0. That means the average value of ability, the average value of ability in the population, the average value of ability in the population is 0. So basically यहाँ पर आपका x वेरिएबल है, यहाँ आपका y वेरिएबल है, ठीक है। हर x के लिए x1 x2, हर x के लिए आपकी डिफरेंट y वैल्यूज हैं, लेकिन आपने उनके एवरेजेस को कनेक्ट करा और फिर आपने एक पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन बनाई, विच इज योर e ऑफ y कंडीशनल xi, विच इज इक्वल टू β1 प्लस β2 xi, ठीक है। लेकिन सारे पॉइंट तो ऑब्वियसली इस पे लाई नहीं करेंगे, तो इसका जो एरर होगा वो u1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसमें एरर हो गया u2 हो गया, इसका एरर हो गया वो u3 हो गया, इसका एरर हो गया वो u4 हो गया। तो व्हाट वी आर सेइंग हियर इज कि इन सारे एरर्स का जब आप एवरेज करोगे तो वो जो है वो 0 होगा। इन सारे एरर्स का अगर आप एवरेज करोगे, तो सारे एरर्स को ऐड करके डिवाइड बाय कितने एरर्स हैं उनको आप ऐड उनका एवरेज करोगे तो वो 0 होगा, ठीक है। ये अभी तो हम ये लिख रहे हैं कि ये एक अजम्पशन होता है, ठीक है, कि हम ये अज्यूम करते हैं कि पॉपुलेशन में द एवरेज वैल्यू ऑफ द डिस्टर्बेंस और द एरर टर्म्स इज 0। अब मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये अजम्पशन लेना क्यों गलत नहीं है, ठीक है। इसका यूज कहाँ आएगा वो बाद में आएगा। जैसे मैंने बताया अभी तक तो आपने जो भी सारे अजम्पशंस पढ़े, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये लेक्चर कहाँ से स्टार्ट किया कि हमें अजम्पशंस इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करना चाहते हैं अबाउट β1 एंड β2। तो जब हम वो देखेंगे कि कैसे β1 हैट से हम इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं β1 के लिए, तब ये अजम्पशंस यूज आएंगे। अभी तो आपने समझना है कि इन अजम्पशंस का मीनिंग क्या है, ठीक है। So now I'm basically explaining कि average value of ability और error term 0 लेना क्यों इतना बड़ा ये प्रॉब्लम नहीं है। Why is this not such a big problem, ठीक है। Now इसको हम proof by contradiction करते हैं कि suppose आप ऐसा नहीं करते, कि आप नहीं बोलते, हम नहीं मानते कि एवरेज वैल्यू ऑफ एरर टर्म्स जो है वो पॉपुलेशन में 0 है। तो यानी कि आप ये बोल रहे हो, सो ई बेसिकली मीन्स एक्सपेक्टेड और द एवरेज वैल्यू। तो आप ये बोल रहे हो कि पॉपुलेशन में एरर्स का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो अगर वो 0 नहीं है तो मतलब वो कोई एक कांस्टेंट है, मतलब वो 0 नहीं है तो एवरेज तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो लेट इट बी अल्फा, लेट इट बी अल्फा इज इक्वल टू ई ऑफ यू आई, ठीक है। मैं क्योंकि हम बोल रहे हैं कि 0 नहीं है, 0 नहीं है तो भाई कोई एक नंबर होगा, वो नंबर को मैंने डिनोट कर दिया अल्फा से, ठीक है। तो मेरा ओरिजिनल मॉडल क्या था, yi इज इक्वल टू β1 प्लस β2 xi प्लस ui, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें से अल्फा प्लस और माइनस कर दिया, तो yi क्या हो गया, β1 प्लस अल्फा प्लस β2 xi प्लस ui माइनस अल्फा प्लस ui माइनस अल्फा, ठीक है। तो अब मॉडल में क्या चेंज हुआ कि अब आपका एक नया इंटरसेप्ट टर्म ऐड हो गया, ठीक है। आपका स्लोप वही है β2, और अब आपका जो न्यू एरर टर्म है, सो न्यू एरर टर्म इज ui माइनस अल्फा। अब सपोज अगर हम इस न्यू एरर टर्म का एवरेज लेते हैं, तो न्यू एरर टर्म का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, ui माइनस अल्फा एक्सपेक्टेड वैल्यू, सो इट वुड बी e ऑफ ui माइनस e ऑफ अल्फा। ई ऑफ ui क्या है,
अल्फा है, हमने एज्यूम किया, और ई ऑफ अल्फा, अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो उसका भी तो यानी कि अगर आप शुरू में आपने एज्यूम नहीं भी किया कि वो ई ऑफ यू आई नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन आप इजीली इसको शो कर सकते हो कि हमारा मॉडल जो है वो ऐसे ही उस पर रिजल्ट करेगा कि आपका जो एरर टर्म होगा उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 होगी। सी, पुराने और नए मॉडल में क्या फ़र्क है? सिर्फ इंटरसेप्ट टर्म का फ़र्क है, और इंटरसेप्ट टर्म का इतना रेलेवेंस नहीं होता आपके रिग्रेशन मॉडल में, ठीक है? इंटरसेप्ट टर्म का इतना रेलेवेंस नहीं होता रिग्रेशन मॉडल में। इट इज़ द स्लोप कोफिशिएंट और द स्लोप पैरामीटर बीटा 2 विच इज़ इम्पोर्टेंट। तो ऊपर भी बीटा 2 था, इस मॉडल में भी बीटा 2 है, ठीक है? So what basically I'm trying to say is कि E of ui equal to 0 करना इतना भी बड़ा strong assumption, this is not a very strong assumption कि इससे सारा आपका मॉडल ही चेंज हो गया। और अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं तो इससे हमारा एनालिसिस या हमारा इन्फ्रेंस जो है वो इजी हो जाता है। हमारा इन्फ्रेंस जो है, इन्फ्रेंस बिकम्स इजी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है? अच्छा, बट द स्टोरी डज नॉट एंड हेयर। इसी के साथ एक एसोसिएटेड अजम्पशन है, इसी के साथ एक एसोसिएटेड अजम्पशन है। तो अभी हमने क्या प्रूव किया कि पूरी पॉपुलेशन के लिए ई ऑफ यू आई इज इक्वल्स टू 0। तो इसी के साथ एक एसोसिएटेड अजम्पशन है दैट ई ऑफ यू आई for a given value of xi is also 0. E of ui for given value of xi is also 0. So this is basically another assumption. This is basically another assumption which is a related assumption. अब क्या कह रहे हैं हम इसमें कि जो भी मैंने डायग्राम बनाया, this is x, this is y, so this is your E of y conditional xi is equals to beta 1 plus beta 2 xi, ठीक है? अब आपकी जो y की वैल्यूज हैं वो हर x के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, हर x के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, ठीक है? तो एक तो हमने ये बोला कि पूरे पॉपुलेशन के लिए जितने भी एरर्स हैं, पूरे पॉपुलेशन के लिए जितने भी एरर्स हैं उन सब का एवरेज 0 है। और अब हम क्या कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर x के लिए भी जितने भी एरर्स होंगे, एक पर्टिकुलर x के लिए भी जितने भी एरर्स होंगे उनका एवरेज भी 0 होगा, उनका एवरेज भी 0 होगा, उनका एवरेज भी 0 होगा, ठीक है? इसका क्या मीनिंग है? सपोज जो मैंने अगर सपोज वेज वाला और वेज और एजुकेशन वाला एग्जांपल लिया कि what we are saying that E of ui conditional xi is equals to 0. So E of suppose ability conditional 8, तो अगर तो बेसिकली E of ability conditional 8 का क्या मीनिंग हुआ? एवरेज ability for the people, average ability for the people with 8 years of education, average ability for the people with 8 years of education को हम 0 बोल रहे हैं, ठीक है? और हम बोल रहे हैं कि सपोज अब मैंने दूसरा ले लिया कि एवरेज एबिलिटी फॉर द पीपल, एवरेज एबिलिटी फॉर द पीपल विद 16 years of education को भी हम 0 बोल रहे हैं, विद 16 years of education को भी 0 बोल रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि चाहे आप 8 साल की एजुकेशन है तो ऑन एन एवरेज एबिलिटी 0 है, चाहे 16 साल की एजुकेशन है ऑन एन एवरेज एबिलिटी 0 है। हम ये नहीं बोल सकते कि अगर एजुकेशन ज़्यादा होगी तो एबिलिटी ज़्यादा होगी। वाई? बिकॉज क्योंकि हम एबिलिटी तो ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। आपने अभी बोला ना, क्योंकि वो एरर टर्म में है तो वो अनऑब्जर्वेबल है।
अनऑब्जर्वेबल है तो आप एजुकेशन और एबिलिटी में तो रिलेशनशिप ही नहीं दे सकते। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि चाहे आप कोई भी x की वैल्यू ले लो, कोई भी x की वैल्यू ले लो, उस x के लिए जो आपके एरर टर्म्स हैं उनकी एवरेज वैल्यू 0 है, उन एरर्स के लिए एवरेज वैल्यू 0 है। ठीक है, आई होप दिस मेक्स सेंस। बिकॉज योर एबिलिटी इज अनऑब्जर्वेबल, तो वी कांट बेसिकली स्पेसिफाई कि रिलेशन क्या है एजुकेशन और एबिलिटी का। आप ये नहीं, आपको ऐसे लगेगा कि ये तो बड़ा नेचुरल है कि इसकी एबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। ठीक है, कि जो जिनकी ज़्यादा एजुकेशन होगी और उनकी एबिलिटी, बट सबसे पहले आपने एबिलिटी मेजर ही कैसे की? अगर आप कर ही सकते थे मेजर तो मॉडल में इंक्लूड कर देते उसको। ठीक है, सो व्हाट वी आर सेइंग दैट E of u conditional xi is equals to E of ui is equals to 0. So that means the average value of the unobservable is the same. The average value of the unobservables is the same across all slices of population, determined by the value of x, and that the common average is equal to the average of u over the entire population, which is equal to 0. So again I am repeating, so you have x here, you have y here, you have the population regression line here. आप क्या कह रहे हो कि आप कोई भी x की वैल्यू लो, सपोज x1 के लिए आपने लिया, तो ये सारे जो y एक्चुअल y वैल्यूज हैं इनके लिए आपने एरर्स निकाले, तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 है। फिर आपने x2 के लिए लिया, उसकी एवरेज वैल्यू भी 0 है। फिर आपने x3 के लिए, उसकी एवरेज वैल्यू भी 0 है। तो एक किसी पर्टिकुलर x के लिए भी एवरेज वैल्यू 0 है। ठीक है, और फॉर द पॉपुलेशन एज अ होल के लिए भी एवरेज वैल्यू जो है वो 0 है। फॉर द पॉपुलेशन एज अ होल के लिए भी एवरेज वैल्यू 0 है। ठीक है, I hope this is clear. Now when we say that for a given x the average value is 0, so obviously we are saying कि कुछ एरर्स पॉजिटिव होंगे, कुछ एरर्स नेगेटिव होंगे, कुछ एरर्स पॉजिटिव होंगे। तो अगर आप उनको एवरेज करोगे तो वो 0 आएगा, तो आप एवरेज करोगे तो उनको वो 0 आएगा। ठीक है, so this also means कि जो फैक्टर्स आपने नहीं लिए मॉडल में, so the factors not explicitly included in the model, and therefore subsumed in UI, not explicitly included in the model and therefore subsumed in UI, do not systematically impact the model। कि इनकी जो है एवरेज वैल्यू कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, इनकी एवरेज वैल्यू
जो है वो 0 रहेगी, तो इससे मॉडल आपका सिस्टमैटिकली इम्पैक्ट नहीं होता, इससे मॉडल आपका सिस्टमैटिकली इम्पैक्ट नहीं होता। अब हम जब कह रहे हैं कि ई ऑफ यू कंडीशनल एक्साई यू आई कंडीशनल एक्साई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि आपके यू आई और एक्साई, यू आई एंड एक्साई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ui and xi are uncorrelated, ui and xi are uncorrelated. So we can also say that the correlation between ui and xi, that the correlation between ui and xi is equals to 0. Correlation between ui and xi is equals to 0. ठीक है, इसका implication क्या है कि अब yi है, तो yi is β1 plus β2 xi plus ui, यानी कि x का अलग इम्पैक्ट है y पे, x आपकी सपोज एजुकेशन है उसका अलग इम्पैक्ट है y पे, u का अलग इम्पैक्ट है y पे, u का इम्पैक्ट तो है ही, ठीक है, और ये x और u अनकोरिलेटेड है, मतलब u का कुछ इम्पैक्ट x में सब्स्यूम्ड नहीं है, इसमें सब्स्यूम्ड u का इम्पैक्ट x में सब्स्यूम नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि एबिलिटी और हम बेसिकली एबिलिटी, तो कोरिलेशन बिटवीन एबिलिटी एंड एजुकेशन इज 0, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, कोरिलेशन बिटवीन एबिलिटी एंड एजुकेशन इज 0, क्योंकि अगर कोरिलेशन होता एबिलिटी और एजुकेशन में, तब आप x का एक इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट y पे नहीं निकाल पाते, क्योंकि जो है उसमें कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपका जो है u का भी होता, ठीक है। सो अनदर वे ऑफ सेइंग दिस इज दैट x and u have separate and additive influences on y. x and u have separate and एडिटिव इन्फ्लुएंसेस ऑन y, x का अलग इम्पैक्ट है और u का अलग इम्पैक्ट है, x का अलग इम्पैक्ट है और u का अलग इम्पैक्ट है, दिस इज क्लियर, ठीक है। Now let us discuss. So we have discussed the 3 assumptions. So क्या क्या assumptions अभी तक discuss किए? That the model is linear. Why is it called a linear regression model? Because it is linear in parameters. Second is your x values are fixed or x is non-stochastic or non-random. ठीक है. Third is the average value or the expected value of the error term is 0, and also for given value of x they are also 0. The fourth assumption 4 is homoscedasticity or constant variance, homoscedasticity or constant variance of ui, homoscedasticity or constant variance of ui, ठीक है। So what does this mean? That given the value of x, the variance of ui, given the value of x, the variance of ui is the same, given the value of x, the variance of ui is the same for all the observations. The variance of ui is the same for all the observations. The variance of ui is the same for all the observations. So basically, homoscedastic word homo means equal and scedastic means spread or variance. Scedastic means spread or
वेरिएंस। इसका क्या मीनिंग है? लेट अस नाउ ऑब्जर्व दिस। Now suppose I am now making a 3D diagram. I'm trying to make a 3D diagram. So 3D इस सेंस में है कि अभी ये y है हमारा, ये x है, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं जो है प्लॉट कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ ui, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ ui। अभी क्लियर हो जाएगा ये। x की वैल्यूज है हमारी x1, x2, x3 सपोज, ठीक है। तो हर x की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारी y वैल्यूज है सेम। आपने उनकी मीन वैल्यू को जो है मीन वैल्यू को जोड़ के so you get the PRF which is E of y conditional xi, this is E of y conditional xi, E of y conditional xi, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि तो जो भी ये y वैल्यूज हैं, ठीक है, जो भी ये y वैल्यूज हैं ये अपने मीन्स के अराउंड सेंटर्ड होती है, अपने मीन्स के अराउंड सेंटर्ड होती हैं। ये अपने मीन्स के अराउंड सेंटर्ड होती है। तो बेसिकली ये कर्व क्या दिखाता है? ठीक, अगर कोई पर्टिकुलर y वैल्यू है सपोज 10 है, ठीक है, तो हाईएस्ट बेसिकली ये कर्व फ्रीक्वेंसी दिखाता है। इट शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ y वैल्यू, फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी ऑफ y वैल्यू। तो मीन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और उसके अराउंड जो भी वैल्यूज होंगी फिर उनकी प्रोबेबिलिटी दिखाता है ये। क्योंकि देखो अगर आपका तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है ना, कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, सपोज आपकी जो है x की वैल्यू 10 सपोज हमने कंसिडर की, तो अब उसमें y वैल्यूज 100, 100, 200, 300, 500, 600, ठीक है, अगेन 200 कैन रिपीट क्योंकि आप डिफरेंट सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हो क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत लार्ज है। तो यानी कि 100 आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो वो प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है वो कर्व। 200 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, 600 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? मीन आने की पॉसिबिलिटी हम जो है ये मानते हैं कि जो सारी y वैल्यूज हैं वो क्लस्टर्ड होती हैं अराउंड देयर मीन वैल्यू। तो जो सारी y वैल्यूज हैं वो क्लस्टर्ड हैं अराउंड मीन वैल्यू। तो जो अब ये मीन से अलग, अब मीन एक तो मीन वैल्यू है, ठीक है, तो जो बाकी y वैल्यूज हैं क्योंकि वो आपकी PRF पे लाई नहीं कर रही तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका एरर है। तो ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, आप इसको y का डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हो या आप इसको ui का डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हो। आप इसको y का डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हो या आप इसको ui का डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हो। वाई? बिकॉज अगर आपने कोई भी वैल्यू जो है उसको पिक किया, ठीक है, तो जो उस y का डिस्ट्रीब्यूशन है वही उस कॉरेस्पॉन्डिंग एरर का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि yi e of y conditional xi या yi minus e of y conditional xi is ui only। तो सोच के देखना, अगर नहीं समझ में आया तो कैन ऑलवेज आस्क योर डाउट कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया ये आप yi का भी डिस्ट्रीब्यूशन मान सकते हो या आप इसको एरर का भी डिस्ट्रीब्यूशन मान सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं बेसिकली कि हर x के लिए जो डिफरेंट y वैल्यूज है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या उनका जो वेरिएंस है, वेरिएंस क्या होता है कि मीन से स्कैटर कितना है वो सेम है, ठीक है। तो अगर आप इनकम कंजम्पशन वाला एग्जांपल लो, इसमें क्या मीनिंग होगा कि अगर कि जैसे जैसे सपोज यहाँ आपका इनकम है, यहाँ कंजम्पशन है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, बट वेरिएबिलिटी इन कंजम्पशन इज सेम। दिस इज एन assumption which we are making। हम ये अज्यूम कर रहे हैं
कि कंजम्पशन में वेरिएबिलिटी जो है वो सेम है एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। कंजम्पशन में वेरिएबिलिटी जो सेम है एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम, एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। ठीक है। अगर सपोज दूसरा केस होता, ये दूसरा केस मैंने बनाया, इसमें क्या हो रहा है कि ये x1 की वैल्यू है, तो जो y वैल्यू इसके अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये x2 की है, इसकी जो है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो है इसमें x3 में विच इज अ हायर लेवल ऑफ इनकम कंपेयर टू x1 एंड x2, इसमें ज्यादा है। तो इसका बेसिकली क्या मीनिंग हुआ कि एज, इसमें भी वही हो रहा है कि एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस, ठीक है, बट देर इज more variability, but there is more variability in the consumption of, there is more variability in the consumption of richer families. There is more variability in the consumption of richer families, क्योंकि x3 ज़्यादा लेवल ऑफ इनकम है, क्योंकि वो बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन तो बढ़ रहा है, एवरेज कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन वेरिएबिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो बेसिकली हम अपने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में ये वाला अजम्पशन लेते हैं कि वेरिएबिलिटी भी सेम रहती है, तो हम इसको बोलते हैं होमोस्केडास्टिक वेरिएंस, लेकिन अगर थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, या हमारे ऑब्जर्वेशन कहते हैं ऐसे वेरिएबिलिटी भी बढ़ रही है कंजम्पशन में, तो हमें क्लासिकल अजम्पशन नहीं होल्ड करता, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोस्केडास्टिक वेरिएंस, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर आपका वेरिएंस ऑफ ui कंडीशनल xi, वेरिएंस ऑफ ui मतलब फॉर अ गिवन x जो है, जो आपके एरर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, अभी हम इसको प्रूव करेंगे कि ये y के भी इक्वल है, अभी जस्ट वेट करिए। तो वेरिएंस ऑफ ui कंडीशनल xi इज जस्ट सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, यानी कि आप कोई भी x लो, उसके अराउंड जो उसके एरर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट है, तो दिस इज होमोस्केडास्टिक वेरिएंस। लेकिन अगर वेरिएंस ऑफ ui कंडीशनल xi इज सिग्मा स्क्वायर i, इसका अब यहाँ पर क्या हो गया, i सब्सक्रिप्ट हो गया, यानी कि पर्टिकुलर x के साथ ये वेरी कर रही है, वेरिएंस स्प्रेड जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई हेट्रोस्केडास्टिक वेरिएंस, ये है आपकी हेट्रोस्केडास्टिक वेरिएंस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में अज्यूम करते हैं कि जो वेरिएंस है वो होमोस्केडास्टिक है, ठीक है। अगर वेरिएंस होमोस्केडास्टिक नहीं है तो हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने होते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे, इज दिस क्लियर, ठीक है। Now, so when I say that, तो ये तो हमने assume किया that variance of ui conditional xi is equal to 0. Now, अब variance का फॉर्मूला क्या होता है, रैंडम वेरिएबल, सपोज कोई भी रैंडम वेरिएबल है, वेरिएंस ऑफ xi, अब मैं मतलब दूसरा वेरिएबल सपोज ले लेता हूँ, वेरिएंस ऑफ zi इज e ऑफ zi माइनस e ऑफ zi होल स्क्वायर, दैट वेरिएबल माइनस उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। आई होप अब ये तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ ui कंडीशनल xi, ठीक है,
I can write this as E of ui minus E of ui conditional xi होल स्क्वायर। अगर आप इसको कंडीशनल ui वगैरह नहीं भी लिखना चाहते, कंडीशनल xi नहीं भी लिखना चाहते, तब भी हो जाएगा इजीली आपका। व्हाट वी आर बेसिकली सेइंग, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं से। तो ui का वेरिएंस, तो इसको z मान लिया आपने, तो z माइनस ई ऑफ z, तो कंडीशनल था तो वो यहाँ पर लग जाएगा, कंडीशनल था तो वो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। दिस बिकम e of ui. Now this we have proved assumption 3 में that this is 0, this is square, so e of ui square, ठीक है। so that means कि variance of ui is equal to expected value of ui square, it is equal to expected value of ui square, and it is equal to sigma square because of our assumption. It is equal to sigma square because of our assumption. So what we are saying that the variance of ui for each xi is some positive constant number, is some positive constant number equal to sigma square. It is some positive constant number equal to sigma square कि सारे xi के लिए जो एरर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसका जो वेरिएंस है वो सेम है और वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। नाउ अब हमें जो मैंने पहले बोला था, अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट वेरिएंस ऑफ ui, ठीक है, विच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, इट इज ऑल्सो इक्वल टू वेरिएंस ऑफ yi। कि जब मैंने वो डायग्राम बनाया तो जो यहाँ पर ये प्लॉट हुआ, तो चाहे आप इसको ui का डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या yi का डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, आंसर सेम ही आएगा। मतलब वेरिएंस वो हम सेम ही चीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके दिस इज अ yi, ये एक yi है और यहाँ ये इसकी मीन वैल्यू है, तो इसके बीच का जो गैप है वो ui है, तो yi का जो प्रोबेबिलिटी होगी आने की वही उस ui की होगी, ठीक है। तो अब हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी हमने प्रूव किया दैट वेरिएंस ऑफ ui कंडीशनल xi और सिंपली वेरिएंस ऑफ ui इज इक्वल टू e ऑफ ui स्क्वायर, यह भी हमने प्रूव किया, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि वेरिएंस ऑफ yi कंडीशनल xi, ठीक है। दिस वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर और ये वाली वेरिएंस भी सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप बिना कंडीशनल लगाए भी कर सकते हो, और बेटर ये रहेगा कि आप कंडीशन लगा के करो, ठीक है, फॉर ईच xi, ठीक है। नाउ वी नो दैट योर ui क्या होता है, yi माइनस e ऑफ y कंडीशनल xi, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ ui क्या होगा, तो वेरिएंस ऑफ ui वुड बी वेरिएंस ऑफ ui इज वेरिएंस ऑफ yi माइनस e of y conditional xi, वेरिएंस ऑफ ui, तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया दैट इट इज इक्वल टू yi माइनस e ऑफ y कंडीशनल xi, ठीक है।
मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. तो ui is yi minus e of y conditional xi. बस आपने दोनों साइड वेरिएंस लिख दिया, तो जो ui की जगह मैंने ये लिख दिया yi माइनस e ऑफ y कंडीशनल xi. ठीक है. अब बाय डेफिनेशन इसका वेरिएंस क्या होगा, इस टर्म का वेरिएंस क्या होगा, दिस टर्म माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस टर्म हो जाएगा. दिस वुड बी एक्सपेक्टेशन ऑफ yi minus e of y conditional xi minus e of yi minus e of yi plus e of y conditional xi. I hope this is clear. Why? Because इस टर्म का वेरिएंस, तो जैसे वेरिएंस ऑफ x क्या है, e of x minus e of x whole square. तो वेरिएंस ऑफ yi minus e of y conditional xi क्या होगा, द टर्म माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट टर्म. जब आप उस टर्म पे एक्सपेक्टेशन लोगे तो y के साथ e लग जाएगा, और e का एक्सपेक्टेशन e होता है, e स्क्वायर कुछ नहीं होता. ठीक है. तो ये और ये कट गया आपका, तो ये बचा e ऑफ yi माइनस, यहाँ स्क्वायर आएगा, माइनस e ऑफ yi होल स्क्वायर. तो इससे क्या प्रूव हुआ, दैट नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज वेरिएंस ऑफ yi. So that means variance of ui is equals to variance of yi is equal to sigma square. Is equal to sigma square. Is this clear? आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. तो ये सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, यानी कि एरर्स का वेरिएंस लो या y का वेरिएंस लो corresponding to a given x. Corresponding to a given x, you will get the same homoscedastic variance, which is a positive number, which is sigma square. Is it clear? ठीक है. Next is assumption 5. Next is assumption 5. Assumption 5 is no autocorrelation between the error terms. No autocorrelation between the error terms. Basically, given any two x values, given any two x values xi and xj, I not equal to j, the correlation between any two ui and uj, I not equal to j, is 0. I not equal to j is 0. So what do we mean by this? You have x values, you have y values, x1, x2, xn. ठीक है. आपने ये y values इसके अराउंड स्कैटर्ड है, आपने पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन जो है बनाई, which connects the average of the y values for given x value. Now suppose there is one actual value, तो ये जो एरर होगा वो u1 होगा, and there is another दूसरे x के लिए ये वैल्यू है, ये u2 है suppose. So what we are saying, that correlation between u1 and u2 is 0. Correlation between u1 and u2 is 0. So this is called as there is no autocorrelation. See, why are we using the term autocorrelation? जब हम
x और u की कोरिलेशन की बात करते हैं, तो x इज अनदर वेरिएबल, u इज अनदर वेरिएबल, तो उसमें हम कोरिलेशन वर्ड यूज करते हैं। लेकिन हम u की ही डिफरेंट वैल्यूज के, u की ही मतलब u इज वन एरर, u की डिफरेंट दो वैल्यूज अगर हमने ली तो हम कह रहे हैं कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, उन दोनों के बीच में हम कोई रिलेशन नहीं है। बेसिकली you can also write that correlation between ui uj, correlation between ui uj for given xi xj, for given xi xj is equals to 0. Correlation between ui uj for given xi xj is equals to 0. So what basically we are saying कि x1 एक given level of income है, suppose 1000 है, x2 is another income which is 2000, ठीक है, और ये एक फैमिली है, ये दूसरी फैमिली है। तो इस फैमिली का जो एरर आया और इस फैमिली का जो एरर आया वो जो है आपस में उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। सो व्हाट वी आर सेइंग दैट देयर इज नो पर्टिकुलर पैटर्न, देयर इज नो पर्टिकुलर पैटर्न in the errors कि so consumption behavior of the consumption behavior of the ith family, consumption behavior of the ith family is not influenced, is not influenced by the consumption behavior, is not influenced by the consumption behavior of the jth फैमिली। कि भाई आई फैमिली थी उसका जो एरर आया, ठीक है, और जो जे फैमिली है उसका जो एरर आया उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि अगर इनके बीच में, इन एरर्स के बीच में जो है कोई रिलेशनशिप होता तो दैट मीन्स कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न था, जो कि पैटर्न है तो मतलब वो रैंडम नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एरर्स में वही चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो जिनका इम्पैक्ट जो है रैंडम है, समथिंग विच यू कैन नॉट मेजर और समथिंग अनऑब्जर्वेबल है। लेकिन अगर आपको पैटर्न दिख रहा है कि आई एच फैमिली का जो कंजम्पशन बिहेवियर है वो जे एच फैमिली के कंजम्पशन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो भाई मतलब इसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, तो उस फैक्ट को आपने अपने मॉडल में लेना चाहिए था, बट आपने अपने मॉडल में ऐसा तो कुछ फैक्ट लिया नहीं है, ठीक है, आपने अपने मॉडल में ऐसा कुछ फैक्ट लिया नहीं है, ठीक है। सो कंजम्पशन, सो देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन कि मतलब दो एरर टर्म्स के बीच में, मतलब एक और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ योर एक्स वेरिएबल, दो एरर टर्म्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, दो एरर टर्म्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। नाउ सो अगर कोरिलेशन यू आई यू जे जीरो है तो आई कैन ऑल्सो से कि कोवेरियंस भी जीरो है। अगर कोरिलेशन जीरो है तो कोवेरियंस यू आई यू जे, कोवेरियंस यू आई यू जे भी इक्वल टू जीरो है। अब मुझे प्रूव करना है कि अगर कोवेरियंस यू आई यू जे जीरो है तो दैट मीन्स कोवेरियंस बिटवीन वाई आई वाई जे भी जीरो होगा। जैसे उस केस में हमने प्रूव किया था कि अगर आपका जो है उस केस में हमने प्रूव किया था कि जो यू आई का जो वेरियंस है और वाई आई का वेरियंस है वो सेम बात है, तो इसमें भी हम यही कह रहे हैं कि अगर आप यू आई यू जे लो या आप वाई आई वाई जे लो, तो वाई आई वाई जे क्या है, बेसिकली द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ द ith एंड द jth फैमिली, की आपस में वाइज में भी कोई रिलेशनशिप नहीं है, आपस में वाइज में भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो हम इजीली देख सकते हैं कि कोवेरियंस यू आई यू जे कोवेरियंस यू आई यू जे, सो कोवेरियंस का क्या फॉर्मूला होता है, सो कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स वाई इज ई ऑफ x minus e of x, y minus e of y, ठीक है। तो कोवेरियंस यू आई यू जे मतलब इट इज e of यू आई माइनस e of यू आई एंड e of यू जे माइनस e of यू जे। अब हमने डिस्कस किया कि एरर टर्म्स जो है ऑन एन एवरेज
फॉर गिवन एक्स आई 0 होते हैं, तो ये किसमें रिड्यूस हो गया, दैट इट इज ओनली इक्वल टू ई ऑफ यू आई यू जे, ई ऑफ यू आई यू जे. E of ui uj is equals to 0. Now ui को I can write it as yi minus e of yi, and uj को I can write it as yj minus e of yj. ठीक है. Now what is this? This is nothing but covariance between yi yj. It is equal to 0. So the consumption behavior of the ith family, yi is the consumption behavior or the consumption of the ith family, and consumption of the jth family, उनके बीच में कोई relationship नहीं है. ठीक है. So these are basically the 5 assumptions. So these are basically the 5 assumptions which we need to keep in mind. So how realistic are these assumptions? So अभी इस स्टेज पे हमें यही सोचना है कि ये सारे अजम्पशंस फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. ये अजम्पशंस फॉलो करके ही हम कुछ ना कुछ जो है इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर पाएंगे. ये अजम्पशंस फॉलो करके हम कुछ ना कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर पाएंगे. अगर ये अजम्पशंस वायलेट करेंगे तो हमें अपने मॉडल जो है चेंज करना पड़ेगा. तो वो हम बाद में पढ़ेंगे. तो बेसिकली हम जो एक मेजर चंक जो आपके कोर्स का होता है कि अगर हेट्रोस्केडास्टिसिटी है यानी कि होमोस्केडास्टिसिटी नहीं है तो वायलेट हो रहा है आपका अजम्पशन. ऑटो कोरिलेशन है तो आपका अजम्पशन वायलेट हो रहा है. तो उस केस में हम क्या करेंगे, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हम ये अज्यूम करेंगे कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के जो अजम्पशंस हैं दे फॉलो. क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अजम्पशन फॉलो, और इनका यूज कहाँ पर आएगा वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है. सो थोड़ी सी डिफिकल्ट वीडियो इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, but I try to make it as simple as possible. So if you have any doubts, as always, you can message me or you can call me. And in case a significant number of you want to have a doubt session, then we can also schedule a doubt session. So I'll be giving an assignment, but I'll be giving more time to do this assignment so that you are able to understand the video completely and then only do the assignment. Please make notes, and you can also read Gujarati. So the PDF I had earlier sent. So गुजराती बुक का मतलब जो बुक में पेजेस लिखे होते हैं पेज 66 से पेज 71 गुजराती में आप रीड कर सकते हो. आपको ये 5 assumptions जो है आपको अच्छे से समझ में. Okay, thanks a lot.